Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. It's me, Miss Afshin, once again for the another lecture, and I'm here for the 10th class. So we are also discussing the chapter 10, which in the chapter 10 दो लेक्चर्स हमने कर लिए हैं. आज हमारा तीसरे नंबर का लेक्चर है और जो हम करेंगे. ओके, इसमें बिफोर this topic, in earlier lectures, that was the lecture number 1 and 2. In that lecture we were discussing about the oscillatory motion, and then we discuss about the periodic motion, and then we discuss about the time period, frequency, and also we discuss their relationship. तो आज हमारा टॉपिक है वाइब्रेशन या साइकिल. What is the vibration? A complete round trip of an oscillating body about its mean position is known as vibration or cycle. I repeat once again, a complete round trip. A complete round trip means एक पूरा गोल चक्कर ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी, यानी जो बॉडी ऑसिलेशन कर रहा है उस बॉडी का कंप्लीट एक राउंड चक्कर जो होता है, ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जब लेता है तो इसको हम कहते हैं वन वाइब्रेशन, या फिर इसको हम वन साइकिल का नाम दे देते हैं. One cycle in the form of the waves, the body move करे in the form of the waves, so that time it will be called one cycle. And if the body is moving the back and forth or to and fro, so then it will called the vibration. Example is what? In the motion of a simple pendulum, the simple pendulum is the best example for the vibratory motion. The body move from the point A to A prime. A and A to A prime is what? A, if the body is on the mean position, और अगर आपने उसको O नाम दे दिया है तो फिर हमने उसके लिए दो एक्सट्रीम पोजीशन रखी हैं, A और दूसरे को एज अ डिफरेंस देने के लिए A प्राइम. आप इसको A1 A2 भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको AB भी कहते हैं, BC भी कह सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है. मैंने यहाँ पर इसको A एंड A प्राइम का नाम दिया है. तो दीज आर माई एक्सट्रीम पोजीशन. एंड देन फ्रॉम द A प्राइम टू A मीन्स कि आपने बॉडी को पहले O पॉइंट से मीन पोजीशन से उठाकर A पॉइंट पर लेके गए, और फिर आपने इसको छोड़ दिया, बॉडी A से A प्राइम पर चली गई, फिर जो है वो A प्राइम से A पर वापस आ गई. यानी मीन O से स्टार्ट लिया, A पर हमने इसको लेके गए, फिर A से जब हमने इसको छोड़ा तो ये A प्राइम पर आई, और फिर वापस जब A प्राइम से A तक आ जाए, सो दिस इज़ कॉल्ड वन कंप्लीट साइकिल या वन वाइब्रेशन. इन द सिंपल वर्ड्स, द बॉडी ने जहाँ से स्टार्ट लिया है और बॉडी जहाँ तक ये वापस आ जाती है, तो हम इसको नाम दे देते हैं किस चीज़ का? वन वाइब्रेशन का, या फिर वन साइकिल का हम इसको नाम दे देते हैं. अब इसके लिए हमारे पास ये जो वन वाइब्रेशन थी या जो वन टाइम पीरियड था, अब ये वन साइकिल जो था, इसमें हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी आती हैं. हम कहते हैं कि ये इसका टाइम पीरियड है एंड दिस इज़ इट्स फ्रीक्वेंसी. What is the frequency and what is the time period? In this chapter you will discuss the some new terminologies like the amplitude, wavelength. So these are words, these are all related with the waves. Time period is what? The time taken by a body to complete one vibration or cycle is known as what? Time period. यानी मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि टाइम टेकन क्या है, टाइम पीरियड क्या है, कि वो टाइम जो एक बॉडी लेता है फॉर वन वाइब्रेशन. इसको आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन आर साइकिल, सो दिस इज़ नोन एज व्हाट? टाइम पीरियड. It is denoted by the T and its SI unit is what? Second. If you check the mathematical form, if you check the mathematical form, so T is equal to what? 1 over F. There is the inverse relationship between the time period and frequency.
What is the frequency? So the number of vibrations in 1 second is known as what? Frequency. It is represented by the small f and its SI unit is hertz. और ये फिगर आपको मैं लेक्चर 2 में डिटेल में मैंने आपको समझाया भी है कि P पॉइंट से बॉडी मीन के बॉडी की पोजीशन यहाँ पर है. इट इज स्टैकिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड C1 तक जो आ जाता है तो दिस इज कंप्लीट वन साइकिल फ्रॉम द C1 टू द C2. यू कैन सी this is the second cycle and this is the third cycle. If you take the frequency of this body, so its frequency will be what? 3, क्योंकि ये 3 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है. और एक पॉइंट से C1 तक जब ये बॉडी जाती है तो इसने जितना टाइम लिया वो क्या है? टाइम पीरियड है. अच्छा जी, द नेक्स्ट इज वर्ड डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या होता है? The straight distance of a vibrating body from the mean position is known as displacement. पेंडुलम में या सिंपल आप झूला स्विंग अगर लेते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि वी टेक अ स्टार्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन. हम इस तरह उसको एक्सट्रीम पोजीशन तक लाते हैं और फिर जब इसको छोड़ देते हैं तो वो जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो ये डिस्टेंस है दिस विल बी कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. यानी द डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट डिस्टेंस ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इज नोन एज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट. एंड रिमेंबर दैट इन दिस चैप्टर या 10th क्लास में ये जो आ जाते हैं तो यहाँ पर वेव्स के उसमें हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से और इसका यूनिट क्या है? मीटर. द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज व्हाट? एम्पलीट्यूड. द एम्पलीट्यूड इसमें यू कैन सी ये आपके पास वेव मोशन दिखाई गई है. ये उसका टाइम पीरियड आपके पास इस तरह से है. याद रखें कि एक वेव जो होती है ये जो मीन पोजीशन है ये तो इसकी अपनी पहले मीन पोजीशन थी. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग ली है और वो मैंने रखी हुई है तो ये उसकी मीन पोजीशन है. मीन से ये जो एक्सट्रीम पोजीशन तक, अब इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स ये हैं तो यहाँ तक मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पॉइंट तक ये जो जितना डिस्टेंस होता है इसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं. The maximum displacement of a vibrating body from the mean position is known as what? Amplitude. ये पेंडुलम के सिचुएशन में मीन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहेंगे, लेकिन वेव के फॉर्म में कि मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम एम्पलीट्यूड का नाम दे देते हैं. This is represented by XO. Yeah, this is the representation and this is also a displacement, so that's why it is taken in the unit of the meter. Next is wavelength. The shortest distance between the 2 points where the pattern repeats itself is called what? Wavelength. You see this is the one wave and the second wave starts from here. One crest and one trough. These are the upper portion which is known as a crest and this is the lower portion which is known as a trough. यानी जो above मीन एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे या मीन पोजीशन से ये जो नीचे का पोर्शन होता है तो इसको हम कहते हैं एक क्रस्ट कहलाता है और दूसरा ट्रफ. तो द कम्बिनेशन ऑफ द वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ से क्या बनती है? वन वेव. तो ये एक वेव है यहाँ से लेकर यहाँ तक. फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन अगर हम इसकी इस तरह से लें कि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्टिव क्रस्ट या 2 कंसेक्टिव ट्रफ दोनों सेम होते हैं तो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 कंसेक्टिव क्रस्ट या 2 कंसेक्टिव ट्रफ इज आल्सो नोन एज वेवलेंथ. The distance covered by a wave in one time period is called what? Wavelength. ये इसकी second definition. Third definition होगी. The first one is what? The shortest distance between the 2 points where the pattern repeats itself, and the second definition is what? The distance covered by a wave in one time period is called the wavelength. And the third definition is what? Okay, the distance between the 2 consecutive crust and trough is called the wavelength. और इसका symbol होता है lambda. You can see, and its unit is also meter. So this was about your vibration, and this is the different terminology related to your motion. Hope you understand it. Thank you so much.